माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 221 221 विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल। माननीय मंत्री जी के पटल पर रखा गया है अध्यक्ष महोदय। For the mic, is it working? Working. Sir, so the METI AI experts say that almost 97 million new AI jobs are projected to be created by 2025, and 85 million jobs are projected to be replacing the conventional jobs. The economic survey also talks about 78.5 lakh non-farm jobs need to be created till 2030. However, Future Skills Prime has only 3.37 lakh candidates having completed their courses when you had a target of 18.56. At this rate, how does the government strategize to match the quantum of fulfilling the future need of these jobs? Honorable Speaker, sir, Honorable Member has raised questions basically about the entire AI landscape which is emerging. I would like to give a little bit of background to this question, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes in democratizing technology. We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people. But in our case, Honorable Prime Minister has got the technology right into the hands of the poorest of the poor. And same is the case with the AI mission. So a very comprehensive India AI mission has been started, Honorable Speaker, sir, which has 7 pillars. And all these 7 pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility. Second pillar is creating a skill framework. Third is to create startup financing. Fourth pillar is creating an innovation center. Fifth is about datasets platform, and the seventh platform is about creating new applications. And the last platform is about having a safe and trusted AI. The Honorable MP has raised the question how many people have got enrolled in the Future Skills. As on today, 8.6 lakh people candidates have enrolled in AI in the Future Skills platform. And this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं, तो वही है कि is it not sufficient, and therefore what is your plan? Anyway, that's a question, please. Or thank you for running the House run today, because yesterday also question asked, we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. But 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, ठीक, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं, कि ये आपका क्या प्रावधान है कि सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो एआई डेटा लैब्स बन रही है, ये भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बन रही है। अगर आप देखो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है, अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है। कोशिश ये है कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, एआई लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। एडवोकेट अधूर प्रकाश। Sir, India has ranked among the top 4 countries
along with US, China, and the UK in the AI ranking, with a 24% share of global. Sir, as per another ranking mentioned in the answer, we are at the top with the global share of 24% of all projects. It shows India has huge potential to explore the essential of AI. Sir, various sectors in our country is witnessing fast adoption of artificial intelligence technologies. Artificial intelligence has the potential to address many critical challenges, but at the same time, it raises some serious concerns, including data privacy, ethical usage, etc. Sir, my question, there is no legal framework to govern the usage of artificial intelligence. Whether the government is planning legislation for regulating the use of artificial intelligence in the country. Honorable Speaker, sir, yes, it is a major challenge that societies across the world are facing, because the way the accountability of social media, accountability in case of using fake news, in case of developing fake narratives, all those accountabilities have to be really established in the society, and the legal framework has to change, and a lot of consensus is required to be created around this, because these are issues where the freedom of speech comes on the one hand, and the accountability and having a proper real news network getting created on the other hand. So these are things which are basically which need to be debated, and if the House agrees and if there is a consensus in the entire society, we can come up with a new law. We are open to that idea. On the point of privacy, I would like to share with you, Honorable Speaker, sir, that we have created 8 projects for developing tools, for developing technologies within our country, so that the emerging landscape of AI can be dealt with the tools and technologies that are available and developed within the country. The list of the projects is given in the answer, and it is laid on the table of the House. So I don't want to repeat that, sir. Shri Anup Dhotre. Sir, I would like to add, what initiative government has undertaken to promote responsible AI development and development in key sectors like health, finance, education, and how their effectiveness will be monitored and evaluated? माननीय स्पीकर सर, ये बात सही है कि एआई का जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है ऐसे सेक्टर्स में होने वाला है जिससे कि जन जन के जीवन पे उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सके। एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इन सब में एआई की एप्लीकेशंस जो देश के काम में आए, देश की ज़रूरतों के अनुसार हो, उसको डेवलप करने के लिए जो एआई मिशन के 7 पिलर्स हैं, उसमें से एक बड़ा पिलर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई के लिए 8 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी रायपुर, पुणे, आईआईटी दिल्ली, IIIT दिल्ली और इस तरह से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलके 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिन प्रोजेक्ट से टूल्स डेवलप हो जो रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए काम आए। और एआई में बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी है माननीय अध्यक्ष जी, उन एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। और ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए दुनिया भर में इस पर डिबेट भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी इस महान सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत एआई के जो ग्लोबल विचार करने वाले देश हैं उनमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ हैं। और जो जीपे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई उसके चेयर भी लास्ट ईयर भारत था, समिट भारत में हुआ। और आज भी जो OECD वगैरह सभी देशों के साथ, UN के साथ जितना भी डिस्कशन है उसमें भारत की बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। श्री प्रसून बनर्जी। Thank you,
आप हमको बोलने टाइम दिया कुछ सर लोग है। सर हमारा एक बात है, बहुत टीम से बोल रहा 7 years खाली हम बोलते हैं जो हम बंगाल में हैं, हम MP हैं सर, आप लोग है पास में। तो हमारा एक ही चीज़ है कि हम लोग का इतना ख़राब हो रहा रेल का लिए, उधर में कोई बंद कर देते तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा सर चलते हैं। हम उधर में सर के बोलते हैं, मिनिस्टर सर है अच्छे हैं, उनको हम बोले हैं जे हमको वो एक चीज़ हम चाहते हैं अंडरपास नहीं, रेलवे का मामला नहीं है। हाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। अच्छा हाँ सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 222 222 डॉक्टर काडियम काव्य। Question number 222, sir. Will the Minister of Railways be और pleased? बस प्लीज फर्स्ट नंबर 222। Answer is laid on the table of the अब ऑनरेबल मेंबर प्लीज क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन। Sir, it is about the integrated coach factory, sir. Over the decades, there is a demand and agitation for the establishment of integrated coach factory at Kazipet. This was also assured in AP Reorganization Act 2014. However, a letter from the ministry now mentions plans to develop a railway manufacturing unit at Kazipet. Hence, I request the Honorable Railway Minister to give a clarity on whether an integrated coach factory will be established at Kazipet or not. And the second one, realignment of railway bypass lines. The Government of India has proposed 2 railway bypass lines on either side of Warangal city in Telangana. The 2 bypass lines, one from Nashkal to Hasanparti and another from Nashkal to Chintalpalli, are dividing the Warangal city in a triangular manner, passing through valuable agricultural lands and residential zones, geoparadising the city's planned expansion and affecting overall growth of the city. It also affects the Mamnoor airport area, from where the Government of India has approved recently for operation of domestic flights. Will the Honorable Minister of Railways be pleased to inform the action taken to re-examine the proposals of bypass lines which are trisecting the Warangal city and hampering overall development of the city? The formation of new railway division at Kazipet. Sir, one. Speaker, sir. अब सप्लीमेंट्री दे देंगे आपको। This is सप्लीमेंट्री Honorable Speaker, sir. The वन question, सप्लीमेंट्री अलाउ। Honorable Speaker, sir. क्वेश्चन वैसे तो स्टेशन से रिलेटेड है। माननीय सांसद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है सप्लीमेंट्री, वो काजीपेट में जो बन रही है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका है और 2 बाईपास लाइंस का है। आई वुड स्टिल लाइक टू एड्रेस इट। काजीपेट में जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है माननीय अध्यक्ष जी, वो AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो एक प्रॉमिस की थी भारत सरकार ने, उसके तहत बन रहा है। और आज रेलवे में एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केवल कोच बनाए या केवल इंजन बनाए वो एक पुरानी पद्धति थी। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी और खासकर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है, उसमें एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसीलिए काजीपेट को रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। काम बहुत अच्छा चल रहा है इसमें, काजीपेट के इस यूनिट में। RVNL उसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है और काम काफ़ी अच्छी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ जो दोनों बाईपास लाइंस के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी, जितने बड़े शहर हैं उसमें रेलवे का एक मास्टर प्लान बन के आने वाले 20, 25, 50 वर्षों के लिए कैसे मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से फ्लो होना चाहिए ट्रैफिक का, उस विचार के साथ देश में जितने भी बड़े शहर हैं उन सब के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। बाईपास लाइन उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर भी माननीय सांसद जी को अगर कोई उसमें कोई पॉइंट है जो ध्यान में लाना चाहते हैं, वो खासकर जो ये कह रहे थे कि किसानों की ज़मीन का, तो ज़रूर आए और उसमें उनकी डिटेल्स शेयर करें, उसको एड्रेस करेंगे। और मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, formation of new railway division at Kazipet. The Government of India have decided to form a new railway zone with Visakhapatnam as zonal headquarters and forming Raigad division. With the new zone coming up there, is every justification for forming another division on South Central Railways, because Vijayawada, Guntur and Guntakal divisions, which are now on South Central Railways, will be merged into the new Visakhapatnam zone,
leaving only Secunderabad, Hyderabad and Nanded divisions for SC Railway. Sir, I would like to know the steps taken for formation of the new division as Kazipet headquarters, which is contributing majorly for the earnings to railways. And the second question, increasing the number of platforms at Kazipet railway station. Presently, there are only 3 platforms existing in Kazipet railway station. Daily around 60 passenger trains and 15 to 20 goods trains are passing through the station. This is located on Secunderabad Balarsha, Vijayawada and Secunderabad Vijayawada routes. 3 directional trains are passing through this Kazipet railway station due to lack of sufficient platforms. Passenger trains are being stopped at outer stations, which is resulting in inconvenience to the passengers and causing delay in train timings. Okay, honorable member, please short me. Honorable Speaker, sir, honorable member has raised the issue of development of Kazipet railway station. I would like to inform the honorable member, and I'm sure she also knows about it, that Kazipet railway station is being developed as it's being totally reconstructed and being developed as part of the Amrit Bharat railway stations. In fact, in Telangana, 40 stations are being developed as Amrit Bharat stations, and very large amount of investment is being done in these stations. Kazipet is one of those stations. Regarding new division at Kazipet, Honorable Speaker, sir, I would like to mention that the way fund allocation has increased. See, earlier the demands used to come primarily because of the lack of funds in a particular area, but that has now changed. Today, Telangana is getting a record allocation of this year, Honorable Speaker, sir. It has got 5,336 crore rupees. Now, if we compare with the allocation during the UPA period, between Andhra and Telangana, the combined allocation used to be 886 crore only. So the allocations today are record allocations. So creating a division just for the sake of asking more funds is not required. Shri Dr. T. Sumati. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I would like to ask the Minister through you, sir, regarding the Amrit Bharat station scheme. The Ministry has announced 1,324 stations which have been identified for the redevelopment, including 77 stations in the state of Tamil Nadu. I would like to ask the Honorable Minister, what has been the update with respect to these railway stations in our state? Especially, I have given representation to my constituency, the Saidapet station, as well as the redevelopment works of Chennai Egmore. Thank you very much. Honorable Speaker, sir, this supplementary is actually not related to the main question, but still I would like to point out that Honorable Prime Minister has really focused on transformation of Indian Railways, and part of that, one of the major programs that we have taken up is redevelopment of 1,300 railway stations. And at this point of time, Honorable Speaker, sir, this is the world's largest railway station redevelopment program, and nowhere in the world has anybody taken up the redevelopment of such a large number of stations in a network which is continuously operating. The Chennai Egmore, I would like to pronounce it as Chennai Alambur. So Chennai Alambur station is one of the Amrit Bharat stations, and it is developing very well. I've visited that twice, and the design and the enthusiasm of the officers working on that project is really amazing. And Honorable Speaker, sir, I can say that will be one of the stations which will become a prime attraction in the city of Chennai. Regarding other stations, Honorable MP can always can meet me and discuss the details. Question number 223-223, Shri Rajesh Verma. 223 माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पे रखा गया, माननीय अध्यक्ष जी। ऑनरेबल सदस्य, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे खगड़िया लोकसभा में एक अलौली स्टेशन है जहां से अब तक
सिर्फ पैसेंजर मालगाड़ी ट्रेनों का जो है परिचालन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन अभी तक वहाँ से उसकी शुरुआत नहीं की गई है, तो ये पैसेंजर ट्रेन वहाँ पर कब से शुरू होगी? और साथ ही साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया कुशेश्वर रेल परियोजना जो बहुत लंबे समय से पूरी तरीके से उसका काम अधूरा पड़ा है, वहाँ पर रेल पटरी बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? बिहार में ट्रेडिशनली रेलवे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और एक लंबे समय तक बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहा। जिस पर्टिकुलर लाइन के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है कि केवल मालगाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को ज़रूर बता दूंगा। और प्रोग्रेस बिहार के प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बिहार के लिए रेलवे ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 गुना एलोकेशन बढ़ाया है। जहां पर 2009 से 2014 वाले पीरियड में मात्र 1132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बिहार के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में ट्रैक्स पे नए ट्रैक बिछाने का जो काम है उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहां यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति वर्ष होता था काम, अभी माननीय अध्यक्ष जी 167 किलोमीटर पर ईयर का काम हो रहा है। और बहुत अच्छी तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, नई लाइन बने, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो, उन सब पे तेज़ी से काम चल रहा है। सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से खगड़िया लोकसभा के महेशकूट गोगरी पथ पर एक आरओबी के निर्माण के लिए मैंने पहले भी कहा है। मैं जानना चाहूँगा कि ये आरओबी का निर्माण कब तक पूरा होगा, क्योंकि घंटों वहाँ पर यात्रियों को जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, और माननीय मंत्री जी से उम्मीद मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ, मैं पहली बार जीत कर आया हूँ, बिहार की सबसे पिछड़ी लोकसभा हमारी है, तो मैं चाहूँगा मंत्री जी का ध्यान हमारी लोकसभा पर विशेष हो। जिस तरीके से उन्होंने मेरी खगड़िया लोकसभा में पहली राजधानी देकर मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाने का काम किया, मैं चाहूँगा कि खगड़िया लोकसभा की जनता आपकी तरफ निगाह बना के रखी, आप एक बार अपनी सकारात्मक निगाह वहाँ भी रखें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने आरओबी की बात की, उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसको और एक्सपीडाइट भी किया जाएगा। मैं साथ ही साथ ये भी माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि आरओबी बनाने के काम में, आरओबी बनाने के काम में, फ्लाईओवर अंडरपास के काम में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहाँ 10 वर्ष पहले 10 वर्षों में मात्र 4000 आरओबी बने थे, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में करीब 12,000 आरओबी बने। कहाँ 4,000 थे, कहाँ पे 12,000, इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और 2023-24 तो एक रिकॉर्ड वर्ष रहा, एक साल में 1,000 से ज़्यादा आरओबी और आरयूबी बने, जो कि अपने आप में एक बहुत एक सेटिस्फाइंग काम हुआ है। और आपके इस पर्टिकुलर आरओबी के लिए भी पूरा ध्यान देके उसको एक्सपीडाइट करें। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2-3 बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद, उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है, हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 करोड़ का मांग। सांसद महोदय ने प्रश्न नहीं पूछा है,
केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं। इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है, तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। श्री दर्शन सिंह चौधरी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, अब हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा से लेकर सागर नई रेल लाइन, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 लाख जनसंख्या हमारी उससे प्रभावित भी होगी और उसको लाभ भी मिलेगा और नागपुर सीधा जुड़ाव उससे हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नई रेल लाइन देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदुखेड़ा और सागर तक की इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे और इसी प्रकार का अनुरोध। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और एलोकेशन भी मध्य प्रदेश के लिए रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश में जहाँ 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद आए थे, डिटेल में चर्चा हुई। उसमें एक बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, तो माननीय सांसद महोदय, उनके साथ मध्य प्रदेश के और भी 8 सांसद महोदय आए थे। तो उस पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके अगर दूसरा अलाइनमेंट बने तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को अश्योर करना चाहूँगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी ही सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके दूसरा एक अलाइनमेंट अगर बन सके, अगर फिजिबल होता है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन कर देंगे। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से, पढ़ाई से, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था संक्रमण का, गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम
3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें IIT मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीशेड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष जी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो जैसे रेलवे ट्रैक्स नए बन रहे हैं, नई ट्रेन्स भी चालू की जा रही है, नई तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही है। वंदे भारत चालू की गई, अमृत भारत चालू की गई, मेमू के अभी 600 कोच बने इस साल। तो ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वर्षों में हुआ है, और आने वाले 5 वर्षों में और भी कई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही तेज मेहनत करके काम कर रही है। 45 तक चलाएगा, 24-25। सुश्री महुआ मोइत्रा। Thank you. Sir, through you, I would like to ask the Honourable Rail Minister a supplementary question on rail connectivity. Sir, my constituency has one complete side of about 140 kilometers from Krishnanagar to Karimpur, where about 12 lakh people are without rail connectivity. I had met the Honourable Minister about 2.5 years ago, and he had very kindly agreed to a survey of the feasibility survey. This feasibility survey was supposed to be ready by December of 2023, and then action was to be taken. Okay. However, no report has been given, sir. Please, can you let us know what is the status of connectivity on the Krishnanagar-Karimpur line? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को पहुंचा दूंगा। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है, और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज़ ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज़ ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में नीरा, जेजुरी, बारामती और दौंड, इस सारे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्टॉपेजेस है सारे, वो पूरे कम हो चुके हैं। दौंड का मैं उदाहरण दूँ आपको, वहाँ 80 ट्रेन रुकती थी, आज 40 ट्रेन सर रुकती है, और वो बहुत बड़ा जंक्शन है, और वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें अगर आप क्वेश्चन इसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड इन दिस स्टेट। सर, अगर दौंड जो बड़ा जंक्शन था, नीरा बड़ा जंक्शन था, बारामती आज ग्रो हो रहा है, इस जगह अगर आप ट्रेन कम करेंगे और स्टॉपेजेस कम करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन मेरी उनको विनती रहेगी कि स्टॉपेजेस कम ना करें, दूसरा कुछ सुझाव देके जिससे एफिशिएंसी बढ़े। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है उसकी तारीफ की, उसको आपने सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुणे दौंड एरिया इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि उसके लिए टोटल एक नया मास्टर प्लान बनके बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बना है। पुणे की कैपेसिटी को डबल करने के लिए उरुली में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पुणे जंक्शन को टोटली रीमॉडल करके रीडेवलप किया जा रहा है। शिवाजी नगर स्टेशन को टर्मिनल बनाने की प्रयास है। फिर पुणे से लोनावला के 3rd और 4th लाइन बनाने का काम है। फिर अहमदनगर से पुणे का नई लाइन बनाने का काम है। तो ओवरऑल उस एरिया के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट
करने के काम हाथ में लिए गए हैं और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अभी करीब 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। और स्टॉपेजेस के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है, तो उसके हिसाब से स्टॉपेजेस भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे स्टॉपेजेस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है। अभी अपने को इस नेटवर्क को सेफ रख के अच्छे तरीके से चलाने का वो मेजर फोकस करके आगे चलना चाहिए और जिस तरह से काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, उससे इन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस थर्ड टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है, तो इस 3 गुना मेहनत से जो परिणाम आएंगे इन 5 वर्षों में रेलवे एकदम ट्रांसफॉर्म होकर निकलेगा। संबित पात्रा सामने। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि रेल केवल एक कनेक्टिविटी का सूत्र नहीं है, वो एक भावना, एक इमोशन का भी सूत्र है। क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी से आता हूँ, मुझे लगता है आज सभी लोग जो प्रस्ताव में रखने वाला हूँ, माननीय मंत्री जी भी उड़ीसा से आते हैं और हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी ट्रेन से उड़ीसा जाता है और उसकी इच्छा होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करे, कर नहीं पाते हैं, तो ये इच्छा होती है कि कम से कम प्रसाद लेके वापस जाएं। आज मैं प्रस्ताव देना चाहूँगा रेल मंत्रालय को कि रेल मंत्रालय हमारे जो मंदिर के प्रशासक है, जिसको मंदिर कमेटी कहते हैं, गजपति महाराज है पुरी के, हमारा जो सेवायत है जगन्नाथ मंदिर के, और जो मुक्ति मंडप है जहाँ पंचांग बनता है, उनके साथ एक बार चर्चा करके इस विषय पे ध्यान करें कि क्या यह संभव है कि उड़ीसा के मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बालेश्वर इत्यादि में हम कियोस्क नहीं कहेंगे, टेम्पल सेंटर, सूखा प्रसाद सेंटर कह के सेवायतों के माध्यम से अगर हम वहाँ पर प्रसाद का विषय रखते हैं तो जो भी यात्रीगण वहाँ से जाते हैं महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं वो जो इमोशन, वो जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं ये विषय माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, भाई संबित भाई ने, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को डिटेल में एग्जामिन करना चाहिए क्योंकि मंदिर के प्रसाद के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी रहती है, तो उसका प्रसाद को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी हैंडलिंग हो, वो सब पे बहुत ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। तो मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो डिटेल में चर्चा करें और जो सेवायत और पंडित जितने भी मंदिर के प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके साथ बातचीत करके ही कोई आगे फैसला लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 224 224 राजीव राय। क्वेश्चन नंबर 224 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। सोलर एनर्जी में आजकल एक बहुत प्रचारित कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 65,000 से 5 लाख रुपया तक कीमत रखी गई है, जो निश्चित रूप से वेंडरों से मिलकर जरूरत से ज़्यादा कीमत है और उसमें उपभोक्ता को 20,000 से लेकर 3,92,000 तक देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तो जो गरीब बिजली उपभोक्ता है, खासकर से बुनकर 500 रुपया तक बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की एक व्यवस्था शुरू गई है। लाखों की अवैध वसूली होती है रोज और बड़ा इशू बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए इस तरह की कीमत रखी गई है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 16,000 का लक्ष्य है, 19,000 का लक्ष्य है और अब तक खाली 98 लगे हैं और उसमें से एक को भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि क्या इसको दाम को कम करेंगे, सब्सिडी सही समय पर मिले या जीरो पेमेंट पर या मिनिमम पेमेंट पर आप लगा सकें, तो ये
कार्यक्रम भी सही चलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा। और हमारे बुनकर भाइयों को लूटने से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए मंत्रालय ने, सरकार ने बहुत स्कीमों के द्वारा ये प्रयास चलाया है कि सोलर एनर्जी बढ़े। और पावर के ऊपर जो हम डिपेंड है, तो सोलर एनर्जी के ताकत से हम आहिस्ते आहिस्ते जो हमारे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, अब तक जो 6 स्कीमें हमने तैयार की है, और जैसा सांसद जी ने कहा है, अब निश्चित तौर से पहले इसकी जो कॉस्ट आती थी, कम से कम पर यूनिट 6 रुपये के ज़्यादा कॉस्ट आती थी। अब हम कम से कम 2-2.5 इस पर रुपये, जो पर यूनिट 2.5 रुपये पर आ गए हैं। और जैसा जैसा नया नया रिनोवेशन यहाँ हो रहा है, उस तरह से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ताकि हम जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम एक कॉस्ट तरह के इसमें हम कम कॉस्ट में बिजली दे पाएंगे। जी, मेरा सवाल ये था कि जो लगाने में कास्ट आ रही है, उसके वजह से 19,000 के बनस्पत केवल 98 घरों पर लगे हैं, उसकी कास्ट कम करने की बात कर रहा था, उसको जीरो पेमेंट पर बात कर रहा था। सवाल कुछ और है, जब आप कुछ और आ रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा होमवर्क करके जवाब दें, तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को बता पाएंगे आपकी तरफ से। दूसरा जो सौर ऊर्जा का, सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि देश के बड़े औद्योगिक घराने जैसे अदानी वगैरह हैं, उनको उसमें कितना हिस्सा दिया गया है और क्या उनके इलाके से काम हो रहा है, उनसे जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा? सर जी, हम भारत इस सोलर एनर्जी में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए स्कीम भी तैयार की हुई है। ये PLI जो स्कीम है, तो ये ऐसे स्कीम है कि जो खुद एनर्जी बनाए, पावर बनाए, और अब तक ये स्कीम अच्छी तरह आगे गई नहीं है, और इसके लिए कहीं सरकार ने अब तक कोई कुछ भी पैसा नहीं दिया है। श्री गणेश सिंह जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय आपका कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का आदेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों बहुत कारगर उपाय किए हैं। उनमें PM घर योजना, PM सूर्य घर योजना, PM कुसुम योजना, जनमन योजना, ये ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता स्वयं चल करके इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पेड़ भी नहीं है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, 15-20 किलोमीटर का एरिया है। क्या वहाँ पर एक बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए उसका सर्वे कराएंगे? ओके। मध्य प्रदेश के सतना जिले में। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सांसद ने जो प्रस्ताव रखा हुआ है, तो हमारे जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो अलग अलग स्कीम हमने दे दी है, और इसी तरह से जो सूर्यघर योजना है, वो घर पे ऊपर 3 किलोवाट तक का सब्सिडी हम देते हैं। पहले किलोवाट को हम 30,000 रुपये देते हैं, दूसरे किलोवाट को 30,000 देते हैं, और तीसरे किलोवाट के लिए हम 18,000 रुपये देते हैं। कम से कम 70,000 उसके ऊपर, ये सूर्यघर योजना में 70,000 ऊपर हम सब्सिडी देते हैं। ऐसे हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड इस सूर्यघर योजना में, मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ हाउस होल्ड में हमने लगाने का तय किया हुआ है। और मैं माननीय सांसद से कहना चाहता हूँ, ये जो स्कीम है वो खुद आपने वो स्कीम तैयार करनी है, और जो ग्रिड से पैसा मिलेगा, जो उसका रेट है, एग्रीमेंट ऐसा आप होगा, इसी तरह से आपको इसका फ़ायदा होगा। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये जो स्कीम है, जो सोलर एनर्जी बनाने के लिए सभी ने इसके ऊपर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी को प्रवृत्त करेंगे, यही मेरा रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 225 श्री धर्मवीर सिंह। 225 धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता
चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब हमारा हरियाणा का बहुत सा आदमी हर रोज़ खाटू श्याम जी जाता है, धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है हमारा सारा प्रदेश। समय समय पर तो ये ट्रेन चला देते हैं, क्या मंत्री जी 9,733 और 34 को सफाई करेंगे? साथ में वहाँ जाने के लिए क्या भिवानी से सीकर वाया लवारू को नई रेल लाइन बिछाने का भी कोई इनके प्रस्ताव है इनके पास? साथ में क्योंकि एक ट्रेन हमारा जो हिसार से चलती है शिवानी, उसका स्टेशन है नहीं। 14,717 और 14,718 और 22,737 और 22,738 का स्टेशन, क्योंकि हमारा भिवानी जिले का बड़ा सब डिवीज़न है, हिसार से चलने के बाद वहाँ ट्रेन नहीं रुकती। साथ में भिवानी के अंदर जो वॉशिंग लेन थी हमारी वॉशिंग, वो पहले से जब से अंग्रेज़ों का राज था तब से थी, अब सुनने में आया है कि उसको शिफ्ट किया जा रहा है हिसार, क्या दोबारा से बनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, मैं बताना चाहूँगा कि भिवानी और सीकर के बीच में कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए जज्जर चरखी दादरी लोहारू नई लाइन 94 किलोमीटर का फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है डीपीआर बनाने के लिए। एक बार डीपीआर बन जाए उसके बाद में उस पर आगे काम होगा। और साथ ही साथ खाटू श्याम जी जो कि हम सब की श्रद्धा से जुड़ा है, उसके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की नई लाइन सैंक्शन हो गई है। उसका काम ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया है। जो स्टेशन की बात माननीय सांसद जी ने कही उसके बारे में मैं जानकारी लेके इनको दूंगा। शॉर्ट में से रामवीर सिंह विदोड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19,119 एवं 19,220 एवं फिरोजपुर और मुंबई के बीच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19,119 एवं 19,020 एवं फिरोजपुर और मुंबई के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 19,023 एवं 19,024 का ठहराव कोविड काल के दौरान बंद कर दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार का लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को देखते हुए तुगलकाबाद स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ियों के ठहराव को पुनः बहाल करने का कोई विचार है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न हरियाणा का है। मैं इसके बारे में ये जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 315 करोड़ रुपए का एनुअल एलोकेशन होता था रेलवे का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 3,383 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया है और हरियाणा में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। साथ ही साथ दिल्ली की बात माननीय सांसद जी ने जैसे कही, दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन साल का होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिल्ली के लिए किया है। माननीय सांसद महोदय ने जिन ट्रेन की बात कही है स्टॉपेज की, उसके बारे में मैं इंडिविजुअल जानकारी लेके माननीय सांसद जी को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 226 कुमारी सुधा आर। थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 226। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। Thank you, sir. I would like ask question through you to our Honorable Prime Minister. Is very well available here. Will the share of power allocation from Kudangulam and Kalpakam project to Tamil Nadu be increased, given the risk the state takes and the power need it has? My second question is, sir, the answer says
12 projects under the construction, but the list is only containing 11. Thank you. माननीय मंत्री जी। Speaker, sir, I appreciate the concern of the honourable member for the projects falling in the state of Tamil Nadu. I would just like to tell her that this issue of the power share has been deliberated upon very extensively, not only within the Department of Atomic Energy, but more so with the Department of Power, the Ministry of Power, Renewable Energy. And the earlier formula, which was known as Gargill formula, made only about 15 to 20% of the electricity available for the home state where it was being generated. In fact, that was revised, and as of today, 50% of the electricity is available to the home state, 35% to the neighboring states in the region, and 15% is unallocated, which goes to the grid. And that has been, by and large, accepted as a consensus formula for all these states and the union territories of the country. And considering the concept of one nation and whole of government, I think that's in the true federal spirit as well. Now, as far as the second part is concerned, it is just that one of the projects has been on hold in Rawalpeta, so that's why maybe the numerical difference that she is pointing out is there. But overall, she would be glad to know that Kundakalam is one project which had been envisaged somewhere around 1990. It was repeatedly... Honorable Mani Sadash, please. It was repeatedly visited, revisited, but it was only after 2014, when Prime Minister Modi ji took over, that it has been made functional. And now we have 4 units of Kundakalam made functional, so also Kalpakam. And the unique features of all these power generation capacities is that over the last 10 years, because I'm not speaking on my behalf, I'm speaking through the figures and through the statistics. In 2014, when this government came, the total power generation capacity of India was 4,780 megawatts, which has almost doubled now. In 2024, it is 8,180. So what was the capacity developed in the last 60 years is equal to the capacity developed in the last 10 years. Not only so, if we proceed by the same pace, our future projections reflect that by 2031-32, this generation capacity would increase 3 times from today, equal to 22,480 megawatt, and therefore this has been possible because we had the talent, we had the equipment, we had the capacity. But what was lacking perhaps was the enabling milieu, which is provided by the political leadership, and that happened after 2014. There was a number of decisions taken, like bulk approval of 10 reactors, like extra allocations, like decision to have joint ventures with PSU, and also involvement of the private sector in a very limited manner, of course. But all this has, and we have diversified, not only confined atomic energy to generation of the energy, but as Homi Baba rightly pointed out at the time of inception, that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes, because at that time there was some controversy. Hiroshima had just happened, and today we are living up to that vindication under the leadership of Prime Minister Modi. Atomic energy is being extensively utilized in agriculture sector. Even for mutagenesis, we have produced 70 mutagenic crops with the intervention from atomic energy. We have fortified foods. In health sector, we are among the first in the world to have come up with a new set of series of isotopes which are being used in the treatment of cancer. And similarly, in the defense sector, through the atomic energy processes, we have come out with cost-effective, lightweight, bulletproof jackets. These are just a few examples, otherwise it will go on for the whole day. Honourable Member Supplementary. Sir, my second question is, the answer says 12 projects under the construction, but listed only 11 projects. Which is the 12th project? And kindly provide the project-wise completion date. Thank you. No, I think if you go through in detail, it has been provided. We have provided the
amount of construction that has been completed and amount of it left. The exact date lines don't happen because sometimes in the process of the construction of the project, some of the imponderables come in. Sometimes we are expanding, there are land acquisition issues, sometimes there are forest clearance issues, sometimes the equipment is to be procured from another country. So it's not easy to give up an exact date, but we have 9 under construction projects, and with a total of 40, we have some of them are in the pre-project stage. Pre-project stage means that the construction has not per se started, but it is in the process of clearances being obtained, the procedural works being accomplished. So that is how we have categorized it into 2 parts in the answer. Shri N.K. Premchandan ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to ask the supplementary. Sir, atomic power, now it has become very important as far as our country is concerned. From the traditional system of generation of power, we are moving to atomic power. So one of the raw material for atomic power is uranium and thorium. And this is derived from monazite. And our country, especially in the state of Kerala, in beach sand minerals, we are having abundant availability of the monazite. But unfortunately, the monazite, which is abundantly available in the coastal area, we have derived it, Indian rare earth is there, but unfortunately, it is not being utilized properly. So I would like to know from the Honorable Minister, even the IRA Indian Rare Earth Limited, there is no value addition expansion project that is a mother plant, it is in my constituency, Chavara, IRA Limited. I would like to know from the Honorable Minister whether the government of India, this is directly commended the Honorable Prime Minister. I would like to know from the government whether some project will be, whether some project will be commenced so as to utilize this monazite to generate the power, and some value addition project will be implemented in IRA. Thank you very much, sir. Honorable Speaker, sir, I appreciate the honorable member's intervention. Whenever there have been any issues related to the atomic energy projects in the state of Kerala, he's always been very forthcoming and cooperative, and he's rightly pointed out, India is proud to have one of the largest shares of thorium in the world. We have 21% of the total amount of value, total amount of thorium available in the world. And he's also rightly pointed out that monazite is the mineral from where it is extracted. Now, monazite, sorry. So monazite is one of those beach minerals. Earlier we also confronted the issues of pilferage happening because some of the business houses would obtain permission to extract some other mineral and clandestinely also indulge in this. So that also, with the support of the honourable member, has been taken care of. Now, as he's rightly pointed out, we are gradually moving in that direction. And I think one of our indigenous projects called Bhavani would make use of that. And that would be an experiment from which, learning from the experience of which, we will move on. And certainly that will also reduce our dependence on uranium or also on the other materials to be obtained from the other countries. Question number 227, 227, Captain Brijesh Chota. माननीय मंत्री जी, टेबल ऑफ की हाउस. Honorable member. Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. So the Honorable Minister has given a detailed reply which is highlighting the planning and execution of rail infrastructure projects as well as the challenges in the Mangalore-Bangalore rail line. Also about the administrative issues of the SPV, which is the HMRDL, which is a joint venture between Indian Railways and the Government of Karnataka. In this backdrop, I would like to ask the Honorable Minister, what is the government's ministry's proposal to address the Ghat stretch, while we know that there is a feasibility study which is happening in the Shiradi Ghat stretch? What is the progress in this feasibility study for the new alignment? Also, sir, I would like to ask the Honorable Minister, the Mangalore city limit, that is the Mangalore Central and the Mangalore Junction, comes under the Southern Railway.
while the entire stretch between Mangalore to Bangalore comes under the Southwestern Railway. I've also highlighted this factor, and the Minister also has acknowledged the fact that the Mangalore-Bangalore rail line is a vital rail line. Is there any proposal in the Ministry of considering Mangalore city limit to be shifted to the Southwestern Railway so that the entire rail line can be better managed, considering the challenges existing in the rail line and its vitality? I would like to ask the Honorable Ministers. क्वेश्चन आर माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है हसन मैंगलोर रेलवे लाइन basically it was taken up by a joint venture between the state and the Ministry of Railways और joint venture में state government की तरफ से जो contribution आना चाहिए that needs to come, then only the project can be taken forward. Honorable Speaker, sir, I'll give the details to Honorable Member. The question hour is over, that's why I would like to give it individually to Honorable Member. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य